السلام علیکم. خبرنامے کا آغاز کریں گے سرخیوں سے. جانوروں کی منتقلی جرم نہیں، اشرار کا ساتھ دینے سے گریز کرنے پولیس کو بیرسٹر اسد الدین اویسی کا مشورہ. پرامن حالات کو بگاڑنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کمشنر پولیس سے صدر مجلس کا مطالبہ. حصول تلنگانہ کے لیے تلنگانہ قائدین کو متحد ہونے کی ضرورت، اعلیٰ بلائی پروگرام سے تلنگانہ قائدین کا خطاب. گاڑیوں میں سیاہ شیشوں کے استعمال کے خلاف ٹریفک پولیس کی کارروائی کا آغاز. اور معمولی بحث و تکرار کے بعد یوسف گڑھا میں ایک شخص کا بے رحمانہ قتل. اور اب خبروں کی تفصیل. دنیا کے گوشے گوشے سے ارض مقدس حجاز پہنچے 30 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے جمعرات کو عرفات کے میدان میں حج کے رکن اعظم وقوف عرفات کے ساتھ ہی حج کی سعادت حاصل کر لی. ان لاکھوں حجاج کرام نے رات بھر منی میں قیام کیا اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد میدان عرفات کی طرف روانہ ہو گئے. وقوف عرفہ حج کا سب سے اہم رکن ہے. حجاج کرام نے ظہر اور عصر کی نماز کے بعد دعائیں مانگی اور مغرب کی نماز ادا کیے بغیر وہ عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو گئے. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مشیرآباد اور دیگر علاقوں میں اشرار کی جانب سے کیے گئے حملوں پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پولیس سے خاطیوں کے خلاف ناقابل ضمانت مقدمات درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے. صدر مجلس بیرسٹر اویسی کے ہمراہ مجلسی وفد نے کمشنر سٹی پولیس انوراگ شرما سے ملاقات کی. بیرسٹر اویسی نے بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں منظم طریقے سے سنگ پریوار سے وابستہ فرقہ پرست عناصر امن کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جانوروں کی منتقلی کے بہانے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پولیس بھی اس معاملے میں اشرار کا ساتھ دے رہی ہے. بیرسٹر اویسی نے گورنر ESL نرسمہن سے بھی مداخلت کی اپیل کی. بیرسٹر اویسی نے کہا کہ اگر پولیس کا رویہ اشرار کے ساتھ ہمدردانہ رہا تو شہر میں حالات بگڑ سکتے ہیں. انہوں نے پرتشدد واقعات میں ملوث افراد کی کمیونل شیٹ کھولنے کا بھی مطالبہ کیا. اراکین اسمبلی پاشا قادری صاحب، بلالہ صاحب کمشنر پولیس سے ملاقات کیے. کل جو مشیرآباد میں واقعہ ہوا ہم لوگ کمشنر صاحب کو بتائے ہیں یہ ہے کہ یہ ایک منظم طریقے سے شہر حیدرآباد میں وقتاً فوقتاً اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور شہر کی پرامن فضا کو خراب کرنے کی یہ فرقہ پرست طاقتیں پوری کوشش کر رہی ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بقرعید جیسا آتی یہ تمام سنگ پریوار کے لوگ اور فرقہ پرست تنظیم کے لوگ ان کو صرف سال کے ایک ہی مہینے میں گائے سے محبت ان کو پیدا ہوتی. یقیناً قانون ہے 77 کا ہمارے پاس آندھرا پردیش میں قانون ہے، مگر جانور کا ٹرانسپورٹیشن پہ تو کوئی قانون نہیں ہے، وہ کوئی جرم نہیں ہے. پوزیشن اگر میں کر رہا ہوں تو وہ تو کوئی جرم نہیں ہے اور پولیس ان کا ساتھ دے رہی ہے. ہم یہ بات کمیشن پولیس کو بتائے کیسا پولیس ان کا ساتھ دیتی. پوزیشن اور جانور کا پوزیشن تو کوئی جرم نہیں ہے. اگر میں جانور کاٹ رہا ہوں تو آپ مجھے پکڑیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بل اور بلٹ اور مادہ جو بھینس ہے اس کے اوپر اگر سرٹیفکیٹ لے کر آئے آپ تو اجازت ہے، اس کے بھی نہیں دے رہے. آخر پھر یہ قریش برادری کے لوگ جو یہ کاروبار برسہ برس سے کر رہے ہیں، جو غریب ہیں، یہ کہاں سے کاروبار کریں گے پھر؟ اور ہمارا ایک مذہبی فریضہ ہے، جو پیسے والے لوگ تو بکرا کاٹ لیتے، جو غریب لوگ ہیں ان کو جانور کاٹنا ہے. تو ہم پولیس سے کمشنر پولیس سے مطالبہ کیے ہیں کہ پولیس ان کا ساتھ مت دے اور اگر پولیس جانور کو سیز کر رہی ہے تو پولیس اپنے پاس جانور رکھے. گوشالہ بھجانے کا کیا اختیار ہے لوگوں کو؟
और फिर ये लोग कौन होते जानवर को रोक के जानवर छीन के लेके जाना। कल कोई भी जानवर, मैं अपने घर में जानवर रख सकता हूँ, अगर मैं काट रहा हूँ जानवर को तो आप उस पर जुल्म आयद करिए, केस बुक करिए। और कल जो मुशीराबाद में हुआ ये सरासर एक मुनज़्ज़म तरीके से हथियार इनके पास है, घरों पर हमला हुआ, 3 बच्चों को चाकू से मारे। हम कमिश्नर पुलिस से मुतालबा किए कि इन तमाम पर इंडिविजुअल इनफरादी मुकदमा FIR बुक होना, 307 का केस बुक होना और पूरे गिरफ्तारी अमल में आना। और मैं साथ ही साथ हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि आखिर क्या ज़रूरत थी एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी डिपार्टमेंट को मीटिंग कॉल करने की, और वो भी सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए, और कॉल करके बोलना कि काउ स्लॉटर एक्ट है, आप लोग ऐसा करिए। इतने साल से मीटिंग की याद नहीं आई। और ये एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी डिपार्टमेंट के जाकर ये नहीं देखता कि चिंगी चरला में, अलाना में, अल कबीर में कितना जानवर कट रहा, कितना इलीगल जानवर वहाँ पे कट रहा। क्या एनिमल हस्बेंड्री वालों को वहाँ से कमीशन नहीं मिल रहा कि इसलिए एनिमल हस्बेंड्री की मीटिंग इसलिए लिए क्योंकि उनको कमीशन नहीं मिल रहा है गरीब लोगों से जो कारोबार कर रहे हैं। पूरा जानवर इलीगल कट रहा अलाना में, अल कबीर में। वहाँ पर ना तो जिनको गाय से मोहब्बत है जाके वहाँ पे एहतजाज नहीं करते, सिर्फ इसी महीने में शहर की फ़िज़ा को ख़राब करने के लिए, पुरअमन फ़िज़ा को ख़राब करने के लिए इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं। और हुकूमत का काम ही है, मैं तो गवर्नर साहब से अपील कर रहा हूँ कि इन चीज़ों का नोट लें, और गवर्नर साहब को चाहिए कि हुकूमत से पूछें क्या हो रहा है ये। और अगर हुकूमत इन तंजीमों को नहीं रोकेंगी तो शहर का अमन ख़राब होगा। हम हरगिज़ नहीं चाह रहे शहर का अमन ख़राब होना। लोग आपस में मिलजुल के रह रहे हैं यहाँ पर, और मिल के रहना चाहिए, मगर सिर्फ बकरीद जैसा आती है उस पर फ़िरक़ावारत का माहौल लेके आना और ये तमाम चीज़ों की बात करना। बुफलो के ऊपर आप सर्टिफिकेट पे काट सकते। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो जानवर बेच रहे, जानवर बेचने वाले तो मुसलमान नहीं है, ये तो रईतू है, फार्मर है, बेचारा उसके लिए कीमती चीज़ है। बाजारों में, गांव के बाजारों में लोग जानवर ला के बेच रहे, आप उनको नहीं पकड़ते। कितने एनिमल हस्बेंड्री वाले कितने गिरफ्तार किए, कितने ये लोग जो आज गड़बड़ कर रहे हैं वो लोग जाके उनको उन बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। जानवर अगर मैं लेके आ रहा हूँ तो वो जुर्म नहीं है, अगर मैं काट रहा हूँ तो वो जुर्म है। महज जानवर लेकर, इसका मतलब ये तो ये तो कोई कानून ही नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कोई कानून नहीं है, दिल्ली में कानून है ट्रांसपोर्टेशन में बैन है, यहाँ पर नहीं है ऐसा। तो इसलिए हुकूमत का काम यह है कि ये इन चीज़ों का गौर नोट ले, एक्शन ले। हम गवर्नर आंध्र प्रदेश से भी गुजारिश कर रहे हैं कि इन लोगों को पहचाने जो शहर के और रियासत के पुरअमन फ़िज़ा को ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम आज कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा साहब से ये मुतालबा करके आए कि कल जो गड़बड़ हुई मुशीराबाद में, जिसमें 2 स्कूटरों को जलाया गया, 2-3 बच्चों को चाकू से हमला किया गया, घरों पर हमला किया गया, 2 छिल्लों को जलाए, इनके खिलाफ इनफरादी 12 FIR इशू होना, नॉन अवेलेबल सेक्शन इन पे लगना, इन तमाम को जेल को भिजाना इनका, और इनके खिलाफ कम्युनल शीट खोलना, तभी जाकर ये तमाम लोगों को इनकी इन कार्रवाई को रोक सकेंगे। वरना शहर का खुदा ना खास्ता गड़बड़ होते रहेंगे शहर में। और मैं आपके ज़रिए से तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ कि हम पुरअमन रहें और ईद को, बकरीद को, दूसरे त्योहारों को पुरअमन तरीके से मनाएं। सिर्फ दीपम कनेक्शन के सारिफीन को ही इजाफी 3 सिलेंडर्स की फराहमी के फैसले पर काबीनी वज़रा में भी नाराज़गी पाई जाने लगी है। कई वज़रा का मानना है कि चीफ मिनिस्टर के इस फैसले से अपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ तनकीदों का मौका मिल रहा है। बाज़ वज़रा ने यह भी कहा है कि इन्नमा बाटा प्रोग्राम के दौरान किए जा रहे ऐलानात के लिए बजट मौजूद है, लेकिन गैस सब्सिडी के लिए क्यों बजट का बहाना बनाया जा रहा है। बाज़ वज़रा ने इस सिलसिले में कांग्रेस आला कमान से शिकायत करने का भी फैसला किया है। 26 अक्टूबर को पार्टी के इजलास में इस मसले पर गर्मा गर्म मबाहिस का इम्कान है। रियासती वजीर सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने कहा है कि इन्नमा बाटा प्रोग्राम सियासी नहीं बल्कि अवामी बहबूदी प्रोग्राम को बेहतर बनाने के मकसद से शुरू किया गया है। मीडिया से बात करते हुए सुनीता रेड्डी ने बताया कि 29 ता 31 अक्टूबर जिले में मेदके में मुनक़िद होने वाले इन्नमा बाटा प्रोग्राम के इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। JAC की जानिब से वज़ीर आला के इन्नमा बाटा प्रोग्राम में खलल पैदा करने के ऐलान से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर वज़ीर मौसूफ ने बताया कि JAC के ऐलान के बावजूद सदर तेलुगुदेशम की पदयात्रा जारी है। रुकन पार्लियामेंट कड़पा जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासों के मुकदमे में रियासती वजीर धर्मना प्रसाद राव CBI अदालत में पेश हुए।
वैनपिक के लिए अराजी फराहम करने में बेकायदगी के मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में उनका नाम शामिल किया है। 25 सितंबर को धर्मना ने 25,000 रुपए की जमानत अदालत में जमा करवाते हुए अबूरी राहत हासिल की थी। सीबीआई चार्जशीट में नाम आते ही धर्मना प्रसाद ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया था, लेकिन अब तक चीफ मिनिस्टर ने उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का जायजा लेने के लिए 26 अक्टूबर को गांधी भवन में आला सतही इजलास मुनक्किद किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि इजलास में पार्टी के तमाम सीनियर कायदीन के अलावा राब्ता कमेटी के अरकान और मरकजी और रियासती वज़रा को भी मदऊ किया गया है। गैस सब्सिडी से मुताल्लिक़ हुकूमत के फैसले पर तबसरा करते हुए सत्यनारायण ने कहा कि हुकूमत ने 40 लाख कनेक्शंस को फ़ायदा पहुंचाने का फैसला किया है। इसके अलावा दीगर सारिफीन को भी फ़ायदा पहुंचाने के सिलसिले में जायज़ा लिया जा रहा है। सरकारी जबान कमीशन के सदर बुद्धा प्रसाद ने इंतबाह दिया है कि तेलुगु जबान को नज़रअंदाज करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बुद्धा प्रसाद ने कहा कि रियासत में तेलुगु जबान को फ़रोग़ देने के लिए मुमकिना इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने तेलुगु फिल्मों में खालिस तेलुगु जबान के अदम इस्तेमाल पर अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा भी मौजूद थे। हुसूल तेलंगाना के लिए तेलंगाना के सियासी कायदीन को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय की जानिब से मुनक़िदा अलाई बलाई प्रोग्राम से खिताब करते हुए मुख्तलिफ कायदीन ने इन ख्यालात का इजहार किया। रियासत के लोक आयुक्त जस्टिस सुभाष रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तहजीब को उजागर करने के लिए तेलंगाना के दीगर अजला में भी इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाने चाहिए। उनका कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम्स के जरिए बड़े और छोटे के फ़र्क को मिटाया जा सकता है और अमन की बरकरारी में भी मदद मिल सकती है। साबिक़ रुकन राज्यसभा केशव राव ने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील को कोई नहीं रोक सकता। रुकन असेंबली नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि अगर हम मुत्तहिद होते तो चंद्रबाबू नायडू महबूब नगर में पदयात्रा नहीं कर सकते थे। इस प्रोग्राम में तेलंगाना तहरीक के लिए नुमाया खिदमत अंजाम देने वालों को तहनीत भी पेश की गई।